Okay, very well then. Very good morning, everybody. I see some 20, okay, at least 22 participants. And I see some people missing. At least 10 people are missing, if I got the head count right. It always happens. Whenever we give 5 minutes extra grace to join in, you people take another 5 minutes. That is all granted. IST, Indian Standard Time. चलो ठीक है. Anyway, can somebody please remind me? Last we were discussing the cycle of an analytics project. How does it proceed? So, if I recall correctly, we were on to the phase of, I think, data preparation. And what is the preparation all about? क्या prepare कर रहे थे आप? We learned that data may have many anomalies when our raw data is coming from any data source. Being analyst, you have to take care of several things which this raw data may contain as anomalies. What were they? Could you come up quickly? Please, one from each. Nah, nothing. Yes. Okay. Yeah, there can be many things. We saw that missing records हो सकते हैं आपके डेटा में. There can be the issue of formatting. There can be duplicate records. Correct? ये सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं आपके डेटा सेट में. And which are eventually they all are nuisance for analyst. कहीं ना कहीं एनालिसिस में परेशान करेंगे. Very well. So enough about anomalies. Next we move on to next is the step which we are calling data mining, and post data mining there is data visualization. And if you pay attention to these, here I have used on purpose, I have used a two-way arrow which symbolizes that data mining and data visualization, they go hand in hand. One is not possible without the other. Okay, however, let's worry about what is data mining. What is data mining? Mhm. So here are a few definitions, word by word, very strict and very concise, succinct definitions of data mining from Google Dictionary and Wikipedia. So take a moment to go through this.
What this eventually means is, if I summarize everything about data mining is, हाँ जो नाम है इसका data mining, mining मतलब क्या होता है? We mine earth to get something precious, coal or diamonds or metal or oil. So that is mining the earth. We are mining the data. We are mining the data to gain some insights, gain some information, right? और इंफॉर्मेशन कैसे मिलेगी? तो तीन वर्ड्स याद रखने हैं आपको. What we are trying to find out? We are trying to find out patterns, trends और reverse trends. याद रहेंगी तीन बातें? Patterns, trends or reverse trends. That is something we are trying to discover through mining humongous amounts of data. That's what Google is after nowadays, you know. Not only Google, in fact, everybody. Now people are killing it. However, there is another definition of data mining. And the fun part is this definition was given way before the term data mining existed. Given by whom? Sir Einstein. Give another moment. Let's see what he has to say about data mining. And trust me, by far, this is the best definition of data mining. Now, keep this statement with you. We will discuss it in further details. Okay, I think most of you are here now. ठीक है जी, देख लिया डेफिनेशन, समझ आ रही है कुछ बात? चलो देखते हैं ऐसी बातें क्यों हो रही. हमने कहा डेटा माइनिंग है, डेटा माइनिंग और डेटा विजुअलाइजेशन they go hand in hand. Let's dive deep further into what data mining is and what is this cycle of analytics project this may contain. So depending upon the business problem, there can be different types of analytics within a project. So that was cycle. Now these are types of analytics which you may need to conduct. Now this may feel a bit boring because it is entirely theory going on. But before we before we start getting our hands dirty with actual data, you need to know these things. So stay with me. हाँ जी, जो चारों तरफ आग लगी हुई है आपके, डेटा दे दो, डेटा दे दो, और डेटा और डेटा. तो करना क्या है जब डेटा मिल गया? What do we do with this data when we actually have it? So there are certain different kinds of analytics. Descriptive, the most basic one. It is in kind of an order of complexity. Descriptive, diagnostic, predictive, prescriptive, and finally it goes into domain of cognitive analytics, which is beyond the scope of DSP program, your program. So, but rest four we will discuss in detail. Let's see what are they. I will try to keep you abreast with help of a very simple and lucid example, and I believe everybody will gel to it. Usually ये सबके साथ आराम से समझ आता है सबको. So descriptive analytics. What descriptive analytics is basically, it is answer to a question: what has happened? You have an existing data,
and you are trying to find out what this data is telling you about your past. For example, there is a company and they are manufacturer of some product, maybe any product, say cell phones. This is a company which manufactures cell phones, and okay, they are manufacturing it and they are marketing their phone. Marketing in the sense they are giving advertisements, television, newspaper, FM, hoardings, जो भी कर रहे होंगे वो लोग. So they are spending some budget to you know to advertise their product, and they are recording this budget in lakhs. Eventually they are making some sales also. Product बिक भी रहा है उनका कुछ. They are recording the sales in some crores and this much lakh of rupees and this much crores of rupees. तो इतना spend हो गया, इतना revenue incoming है, and they are recording this data month on month, month on month. And so on. ठीक बात है. So with some time, after some time, uh, this will become a data set. Yes or no? In a due course, this becomes a data set. Now one fine day, CEO walks in to marketing department. CEO walks in marketing department. हाँ जी, तो क्या बोला सीईओ साहब ने? सीईओ साहब ने बोला, भैया मार्केटिंग क्या चल रहा है? क्या कर रहे हो तुम साल भर से? समझ आती है बात? क्या पूछ रहा है वो आपसे? What has happened? क्या बताता है डेटा आपका? So that's descriptive analytics which you present to answer this question, that what has happened. हाँ जी, तो क्या आंसर करेंगे आप इनको? क्या बताएंगे आप सीईओ साहब को कि ये लो, ये एक्सेल शीट भर रखी है हमने, पढ़ ले इसे कहीं बैठ के. Just think about it. Doesn't seem like a good way to deal with CEO. क्या करना चाहिए? Anything occurs to you? Nobody? Somebody at least? कोई एमबीए बीबीए नहीं है क्या? हाँ हाँ, समरी. समरी, लेकिन कैसा समरी? Exactly. I wanted to see this. Yes, finally, finally coming up. Some kind of, if some kind of, I'm not worried about now. Let's not worry about will it be bar chart or will it be pie chart और बार ग्राफ और बनाएंगे क्या, वो बाद में सोचते हैं. बट समझ आ गया ये विजुअलाइजेशन. प्रॉब्लम समझो. a, a senior person is not interested in these numbers, in these daily numbers. क्या प्रॉब्लम है उसको? एक तो इन्हें देख करके उसे समझ नहीं आ रहा कुछ, दूसरे उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो इतना माइन्यूटली देखेगा उन सब चीजों को. यस और नो? सीईओ क्या बोलेगा? 10 मिनट है तुम्हारे पास,
4 स्लाइड की पीपीटी लेके आ जाओ। इसीलिए पूछ रहा था मैं, एमबी वाले हैं क्या, उन्होंने जीवन भर करते क्या हूँ, पीपीटी बनाते। तो थिंक अबाउट इट, रादर देन गिविंग हिम दिस एक्सेल शीट, what do you say, want this help better? What they have done now, marketing department ने क्या किया है, they have played smart, they have just plotted marketing budget on x axis, sales on y axis, right? और क्या बता रहे हैं वो, अब कैसे बात करेंगे वो सीईओ सर से, सर देखिए बजट इतना था, सेल्स इतना हुआ, हमने बजट इंक्रीज किया, ठीक है शुरू में सेल्स पे फर्क नहीं पड़ा, लेकिन फिर हमने बजट और इंक्रीज किया तो सेल्स भी बढ़ते जा रही है, हम बजट बढ़ाते जा रहे हैं, सेल्स इंक्रीज होते जा रही है, बजट बढ़ाते जा रहे हैं, सेल्स इंक्रीज होते जा रही है, कितना बढ़िया काम कर रहे हैं, कितना अच्छा यूटिलाइज कर रहे हैं अपना मार्केटिंग बजट, है ना? प्रमोशन दे दो ना इस बार। You see, there is a clear trend. There is a clear trend which is showing this. तो हमारा हिस्टोरिक डेटा, हमारा एग्जिस्टिंग डेटा क्या बता रहा है कि हमने किया क्या था, क्या चल रहा था। I hope it is clear now why I said that visualization goes hand in hand with data mining. जो पैटर्न्स, ट्रेंड्स और रिवर्स ट्रेंड्स आप देख रहे थे वो दिखेंगे कैसे? विजुअलाइजेशन से ही तो दिखेंगे। So that's descriptive. Next comes is diagnostic analysis. Diagnostic analysis. This basically answers the question why some phenomena have happened. नाम में ही उसके डायग्नोस्टिक, इट diagnoses for something. For example, अभी जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने चार्ट बना के दिखाया था, अभी जो चार्ट बना के दिखाया था, अगर वो इतनी अच्छी पिक्चर नहीं आती, सपोज वो कुछ ऐसा आ जाता, कैसा आ जाता कि इधर मार्केटिंग बजट है, इधर आप सेल्स रिकॉर्ड कर रहे हैं वैसे ही, लेकिन वो ग्राफ कैसा आया है, ऐसा। मतलब मतलब जो ट्रेंड आप देख रहे थे वो ट्रेंड कुछ ये दिखा रहा है, बजट आपका मंथ ऑन मंथ बढ़ता ही जा रहा है, सेल्स मोर और लेस इसी ब्रैकेट में ऊपर नीचे थोड़ी बहुत हो रही। तो क्या कहने वाले हैं सीईओ साहब इस बार, क्या कहने वाले हैं? प्रमोशन चाहिए हैं? डिमोशन ले लो। गेट द जिस्ट, गेट द जिस्ट, चलो माना इतना कमीना नहीं है सीईओ, सीईओ इज अ नाइस लेडी, ठीक है? तो सीईओ इज अ नाइस सोफिस्टिकेटेड लेडी, so what is she going to say? At least this, yes or no? एटलीस्ट इतनी बात तो जरूर करेगी। यार ऐसे क्यों हो रहा है, क्या गलत कर रहे हैं हम लोग? बताओ जरा क्या गलत हो सकता है यहाँ पे इनसे।
व्हाट डू यू थिंक ऑफ इट? सपोज ऐसा सिस्टम हो जाए, on a fateful day, a marketing guy happens to stumble upon the same situation in front of the CEO. What do you think? क्या हो रहा होगा? किस वजह से हो सकता है ऐसा? Everybody respond, please. Strategy is not effective. वो अमित, that is obvious. वो तो दिख रहा है स्ट्रेटेजी काम नहीं कर रही तुम्हारी, जो कुछ भी थी। गलत क्या हो रहा है? Due to low quality, your product is low quality product. Just pay attention. अगर प्रोडक्ट क्वालिटी खराब ही होती तो ये सेल्स नीचे भी तो जानी चाहिए थी। ये नीचे नहीं जा रही है, यानी हमारा कस्टमर बेस तो है, एक लॉयल कस्टमर बेस है जो बना हुआ है, लेकिन मार्केटिंग बजट बढ़ने से हमारा ऑडियंस नहीं बढ़ रहा। ट्राई टू गेट द प्रॉब्लम राइट, ट्राई टू गेट द कॉन्टेक्स्ट राइट। ठीक है, बहुत जल्दी से सोचा लो क्वालिटी होता तो खत्म हो जाना चाहिए था मार्केट अब तक। बिक क्यों रहा है? मार्केट कंडीशंस, कैन यू बी अ बिट स्पेसिफिक, निकिता? Let your brain juices flow. I want you to, get into this thinking hats. Okay, here comes something specifically. Overspending on marketing. Overspending on marketing in the sense, if I'm getting it right, सुशील बताना मेरे को, I may be wrong also, मेरे को जो समझ आ रहा है, सुशील का कहना है जब इतना बजट करके इतनी सेल अटेंड हो गई थी, तो चलो मैक्सिमम इतना करके देखा, इतना करके देखा, इतना करके देखा, अब बढ़ाते क्यों जा रहे हो? बंद करो बढ़ाना। दिख तो रहा है कि सेल्स इंप्रूव नहीं हो रही बजट बढ़ाने से। Why overspend? Cut it short here. Okay, seems like one reasonable explanation. Uh, Shweta, okay, more or less same. और कोई बात हो सकती है? मैं कुछ बताने वाला हूँ अभी। Pay attention to that. If it gels to you, this is the company which manufactures cell phone. Say it is Apple. Apple. कितना भी बजट बढ़ा लो, you have a specific audience. हर आदमी नहीं खरीदेगा एप्पल। अरे आईफोन नहीं लेगा ना हर, कितना भी ऐड कर लो उसका। Tell me if I am wrong. Tell me if doesn't it doesn't go down the throat. So that is another explanation. Another thing which should have struck you by now, honestly speaking, क्योंकि स्लाइड दिखा चुका हूँ मैं। डायग्नोस्टिक एनालिसिस कैसे होगा फिर इसका? आई एम जस्ट गिविंग यू वन अनदर एग्जांपल। बहुत सारे रीजन हो सकते हैं एंड वी विल टेस्ट दीज सेवरल एक्सप्लेनेशंस कि कहीं ऐसा तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है। अनदर एक्सप्लेनेशन कुड बी, जिन आप मीडियम्स पे ऐड कर रहे हो, अगर उनका ब्रेकअप देखें तो शायद कुछ देखने को मिल जाए। शायद देखने में पता चले कि हमारा प्रोडक्ट ऐसा है कि उसका ऑडियंस टीवी देखता है या एफएम सुनता है, न्यूज़पेपर पढ़ता नहीं है। ऐसा बजट लगाना बंद करें, और मे बी वाइस वर्सा, एनी परमुटेशन और कॉम्बिनेशन ऑफ द वैल्यूज।
सही बात है, करके देखना चाहिए ना ये, शायद कुछ देखने को मिले ऐसा। So I'm just giving you an imaginary example, but it actually happened with many companies, not very long ago. In fact, enough long ago. It was early 2000s. Many companies, many, very intelligent and very reputed companies, and they made this mistake. This was actually happening. पता क्या हुआ था? This is a chart. This shows you this dark orange bar. This is TV budget. This yellowish bar. This is radio budget, and not budget. And newspaper one is this. You know, क्या कौन सा शेड है ये? लड़कियों बताना जरा, ये वाला जो भी है, हमारा खत्म हो जाता है रेड ब्लू ग्रीन येलो करके। चलो जो भी है बता देना थोड़े बहुत। दिस इज number of hours spent in per 24 hours throughout the population। ऐसा कुछ चार्ट बना। ठीक है, ओके इट्स ओके। हाँ देखा है ना, पीच। आई वाज वेटिंग फॉर दिस, रियली। सो कोई ना कोई बताता जरूर है। पीच का भी शेड बता दोगे तुम लोग, तुम्हारा बस चले तो। चलो ठीक है। तो दिस इज नंबर ऑफ आवर्स स्पेंट बाय एंटायर पॉपुलेशन पर 24 आवर्स, कि लोग कौन से मीडियम पे कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं ऑन एंड एवरेज। तो वी हैव डेटा ऑफ लास्ट 15 ईयर्स। ये डेटा हम लेकर के बैठे थे, और हम क्या देख रहे हैं, 2000 में कुछ ऐसा ट्रेंड था, 2005 में कुछ ऐसा था, 10 में इतना, 15 में इतना। तो दिस इज नॉट पॉपुलेशन की बात नहीं कर रहे, पॉपुलेशन तो बहुत इंक्रीज हुई है। वी आर टॉकिंग अबाउट एवरेज टाइम स्पेंड पर 24 आवर्स। तो वो पैटर्न कुछ ऐसा ऐसा आ रहा है। कुछ पता चल रहा है इससे? मैं उसी क्वेश्चन पे हूँ। मैंने एक ग्राफ बनाया, मैं देख रहा हूँ मार्केटिंग बजट बढ़ता जा रहा है, सेल्स फ्लैट पड़ी हुई है। क्या कुछ रीजन हो सकता है? एंड बाय द वे, दिस इज एक्चुअल डेटा। दिस इज एक्चुअल डेटा, नंबर ऑफ आवर्स स्पेंट per capita per 24 hours of India. This is TV, this is FM, this is newspaper. अकॉर्डिंगली तो लगाएं, कहाँ लगाएं? किसके लक्षण ऐसे लग रहे हैं कि वहां लगा देना चाहिए पैसा? अभी थोड़ी देर पहले आइंस्टाइन सर आए थे ना, कुछ कह रहे थे वो। क्या कह रहे थे? उनके कहने का मतलब ये था, योर आंसर मे बी एनीवेयर, inside the data or maybe outside the data. You have the data for TV, radio, newspaper. Did you miss something? Yes, you missed something.
There came another medium and it rose to power like anything within these 15 years. उस पर फोकस नहीं था किसी का, मतलब अब की बात नहीं कर रहा हूँ, उस समय किसी का नहीं था. Slowly it creeped up and up, and it is still on. Yes or no? Yes, still on. अरे कौन है वो मीडियम? इंटरनेट, डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया, कुछ भी कह लो. एंड ऑफ द डे इट्स इंटरनेट. I don't know if you remember. I don't know if you, some of you are very young, you will not even believe. There used to be 1 GB data for 1 month, और उसका रिचार्ज अलग से होता था. और अभी क्या हाल है? रोज मिल रहा है 2-2 GB. खत्म करे नहीं हो रहा खत्म. समझ नहीं आ रहा कहाँ फेंकू ले जाके. What happened meanwhile? There came a medium जो टाइम के साथ साथ रादर देन कि ये कॉस्टली हो जाता, कॉस्टली नहीं हुआ, ये चीप होता चला गया. एक्सेस बढ़ता ही चला गया, और इतना बढ़ गया. अरे अपनी तुम्हारी तुम्हारी और मेरी बात कर लेते हैं. बिफोर दिस कोविड सिचुएशन, what used to be our routine? A typical weekday morning, है ना? सुबह उठे, शावर लिया, रेडी हो गए, चाय पी ली, ऑफिस निकल गए. शाम को वापस 7 बजे 7:30 बजे वापस आ रहे हैं. वापस आए, फिर चेंज कर लिया, चाय पी ली, और अब मेरे पास आधा घंटा 1 घंटा, दैट इज माई लेजरली टाइम. अभी मैं थोड़ा सा कुछ स्पेंड कर सकता हूँ. क्या स्पेंड करता हूँ? या तो मैं न्यूज़पेपर ही पढ़ लूँ, या एफएम ही सुन लूँ, या टीवी देख लूँ. लेकिन असल में कर क्या रहा हूँ मैं भी वही कर रहा हूँ जो तुम कर रहे हो. मोबाइल पकड़ के बैठे हैं सब. यस और नो? उस मीडियम पे तुम्हारी कंपनी का ऐड नहीं आता. आपका ऑडियंस ना टीवी देख रहा है, ना न्यूज़पेपर देख रहा है, ना एफएम सुन रहा है. वहां आप ऐड दिए जा रहे हो. कैसे बढ़ेगा सेल्स? ऑडियंस तक पहुंच ही नहीं पाता आपके. So trust me, अभी कोई इग्नोर नहीं कर सकता इसको. But initially, in initial days, in these times, it happened. It really happened in these times, in this phase. ठीक है, fair. So that's diagnostic analytics. So it is just one typical example. I'm not saying that this will be the case every day. I'm just giving you one example. Next comes is predictive analytics, which is again very intuitive by name. हाँ जी, क्या कहता होगा predictive analytics? अभी तक आपको ये पता है कि हुआ क्या था, what has happened. Descriptive analytics में पता चल गया. Then you got to know something disturbing which has happened. So you diagnosed it for a reason, for a probable hypothesis, and you got to know, you have an explanation why it happened. What will be the next question? अब की बार सीईओ मैम का क्वेश्चन क्या आने वाला है? क्या हुआ था? सेल्स फ्लैट पड़ी थी, बजट बढ़ता जा रहा था. उन्होंने पूछा क्यों हुआ? आपने कुछ एनालिसिस किया, ब्रेक थ्रू निकला, and you got to know, yes, you were not choosing your medium properly, एडवर्टीजमेंट का, इसलिए that is why this happened. Next questions, which is very much seems likely, is tell me what is going to happen next, or what seems likely to happen next.
So that's all about predictive analytics. Okay, we try to predict, we try to forecast what is going to happen in near future. And yes, near future, that is something underlined here. We, based on past 20 years, we should not predict next 20 years. But yes, based on past 20 years, we can certainly predict something about the next year or next couple of years. इतना चल सकता है. Can we predict something like this? Yes, actually, as a matter of fact, we have very powerful algorithms with a certain sense of accuracy and with a certain sense of margin of error. Yes, we can predict, we can forecast uh, the likelihood of near future. For example, I'm again giving very crude example, very crude example, जो हम इंटरनेट वाला देख रहे थे अभी. अगर मैं देख रहा हूँ मेरे को पिछले 15 साल का डेटा ये दिखा रहा है that internet has grown like this. Can I predict कि आगे क्या होने वाला है? हाँ, कुछ ऐसा ही होने वाला है. दिख रहा है उसका ट्रेंड इस तरह से एक्सपोनेंशियल जाता हो. It has taken a very steep growth curve. So based on the past trend, we can extrapolate about future. Another stage, which is the next, we should not essentially call it a stage. जो आपने देखा था, that was prescriptive analytics. Actually वो अपने आप में स्टेज तो नहीं है. It is basically combination of these three. Practically सोचो ना. I know what happened. I know why this happened. And now I know what seems very likely it will happen tomorrow. What will CEO ask? CEO will ask for a prescription. आपने सब कुछ बता दिया. क्या बीमारी थी, क्यों हुई थी, और कल इसकी स्टेज क्या रहने वाली है. अब हम कह रहे हैं इलाज बताओ ना. Prescription, prescriptive. Come up with some solutions which can, yes, fix this problem. So that's prescriptive analytics. यहाँ तक ठीक है जी. We are going to see something very interesting today. Data mining, a use case, a real-time analysis which actually happened. अभी तक मैं जो आपको बता रहा था, these are definitions and I have taken and I took an imaginary example and we discussed. But क्या ये सिर्फ बोल बचन है, क्या ये सिर्फ गुरु ज्ञान है, या इंडस्ट्री में कुछ होता भी है इससे? We'll see just now. So we will discuss a use case this time. It is not imaginary example. It is a use case which was conducted by Uber. Again, a very innovative company. They do a lot of things with data, and both kind of analysis they do. Very intelligent, of course, but ethical. Well, it is a question sometimes. If you have heard news recently, Uber is in trouble again.
Uber's COO is under several charges. Well, for now, let's focus on the intelligent part of Uber. Just read the problem statement. क्या कह रहा है? Try to get a knack of it. Got this? What happened actually? What Uber realized was, yes, initially it was just a hunch that बाकी सब ठीक है, but whenever it is a request involving airport, whether it is to airport or it is from airport, then we are not able to fulfill these requests efficiently. Can somebody to tell me why only 5 days? What is so specific? Hmm. Actually, this theory works. The 5 days are the 5 weekdays. वीकेंड पे पैटर्न चेंज हो जाएगा ना ट्रैवलिंग का. वीकडेज में पीपल आर ट्रैवलिंग फॉर ऑफिस वर्क्स एंड कॉर्पोरेट्स एंड दिस एंड दैट. वीकेंड पे maybe travelers and family, they will travel, corporate will not travel at all. So they did not want to bias it with that. So that's why 5 days, not 7. But question still retains. Why 5 days? Why not 4 months? Why not 6 months? यार सिर्फ एक वीक का डेटा लोगे तो वीकेंड से बायस आ जाएगा. बिल्कुल सही बात है. वीकेंड पे पैटर्न कुछ और होगा, वीकडेज में पैटर्न कुछ और होगा. दिस विल बायस दैट विल बायस दिस, और दोनों का ही रिजल्ट आपको पता नहीं चलेगा. वहां तक बात समझ आती है. But what if I have a data set of 3 months or 6 months? Everything will average out, and जितना डेटा हो उतना अच्छा एनालिसिस कर. डेटा ज्यादा हो तो एनालिसिस अच्छा होगा ना, और पक्का हो जाएगा. हम्म. गेटिंग इट, समझ आ रहा है थोड़ा थोड़ा अभी कहानी. एग्जैक्टली द रीजन. अभी तक दिस वाज जस्ट हंच. This pressing problem was just due to a hunch. अगर ये प्रॉब्लम सच में हुआ, जितना टाइम वेट करोगे, व्हाट डज इट मीन? इट इज लॉस. स्ट्रेट फॉरवर्ड लॉस. So that's why they should not go for a you know 3 month or 6 month pilot. Let's do it for a 5 days pilot, and let's see if we are able to detect something. We will then, okay, we will further look into detail. उसके बाद सोचेंगे क्या करना है, लेकिन पहले एक बार थोड़ा बहुत तो पता चले, कुछ आइडिया तो लगे जल्दी से जल्दी. Verify. Next comes is
नेक्स्ट कम्स इज एक्चुअली क्या है ये, जस्ट थिंक अबाउट इट। व्हेन यू मेक अ रिक्वेस्ट टू उबर और ओला, कितना डेटा रिकॉर्ड हो रहा होगा आपका, कितना डेटा जाता है उसके डेटा सेट में। योर ईमेल आईडी, योर मोबाइल नंबर, योर लोकेशन, योर नेम, टू एंड फ्रो लोकेशन, योर फेयर, आपकी कैब कौन सी थी, डू यू बुक इकोनॉमी और कॉम्फी और लग्जरी, who was the driver, what was your rating after that, and there may be 50 variables, right? But what they are doing with for this particular analysis? What are their analysts doing for this analysis? Their analyst is doing fantastic job, I must say. Only 6 attributes, not entire plethora of information. Only 6 attributes which really make difference, which really make meaning to this analysis. Remember data extraction, we talked about this, right? Data collection is different from data extraction. डेटा कलेक्शन कितना भी कर लो, अभी एनालिसिस करना है, तो नो मंकी बिजनेस। वही डेटा चाहिए जो काम का है। क्या क्या डेटा उठाया उसने, रिक्वेस्ट आईडी, व्हाट इज दिस, रिमेंबर यूनिक की या प्राइमरी की हमने बात की थी, ये कॉलम ऐसा होना चाहिए डेटा में। वेन एवर यू क्रिएट अ रिक्वेस्ट, तो एक रिक्वेस्ट बुक हो गई है, उसके लिए कोई नंबर आना चाहिए, बिकॉज ऑल अदर थिंग्स कैन बी कॉमन। बाकी कुछ भी इस डेटा सेट में, इनकी एक्सेल शीट में कुछ भी कॉमन आ सकता है। देन दे आर रिकॉर्डिंग टाइम ऑफ रिक्वेस्ट, ओके इस डेट को इतने बजे, टाइम स्टैम्प, यू हैव सीन दैट टाइम स्टैम्प, यस, होती है ना कुछ इस फॉर्म में, ऑनलाइन बिल्स पे अक्सर देखने को मिला होगा आप लोगों को। DDMMYY and HHMMSS up to the precision of seconds you can see किस टाइम पे ये बुकिंग हुई है, तो दैट इज टाइम ऑफ रिक्वेस्ट। इस तरह से वो टाइम स्टैम्प के फॉर्म में जिस समय रिक्वेस्ट हुई। तो टाइम ऑफ रिक्वेस्ट ये तो यूनिक ही होता होगा, टाइम ऑफ रिक्वेस्ट तो यूनिक ही होगा हर रिक्वेस्ट के लिए, यस और नो। अरे क्या सरप्राइज है इसमें, टाइम ऑफ रिक्वेस्ट यूनिक नहीं होगा हर रिक्वेस्ट के लिए। व्हाई आर यू नॉट रेस्पॉन्डिंग पीपल, हाँ यस भावेश, तुम लोग अभी सीखे नहीं हो ना, तुम लोग अभी समझे नहीं हो मुझे, मैं कहता रहता हूँ मेरी हर बात में हाँ हाँ नहीं करना होता, ये सिर नहीं हिलाना होता, मैं ऐसे ही फंसाता रहूंगा। क्यों नहीं हो सकता सेम, हो भी तो सकता है बिल्कुल, एक ही दिन, एक ही घंटे में, एक ही सेकंड पे, बाय चांस, बाय सम, यू नो, बाय कोइंसिडेंस मैंने भी बुक कर दी, तुमने भी बुक कर दी, हो गई 2 रिक्वेस्ट बुक एक ही टाइम पे। इसीलिए तो चाहिए थी रिक्वेस्ट आईडी कि अलग अलग आइडेंटिफाई कर सकूं, क्योंकि टाइम ऑफ रिक्वेस्ट 2 रिक्वेस्ट का सेम हो भी सकता है, मैंने भी उसी टाइम पे किया, तुमने भी उसी टाइम पे किया, एंड बाय सम गॉड फॉरबिड इंस्टेंस, बाय 0.001 प्रोबेबिलिटी, it is at the same day, same hour, same minute, same second.
ठीक है, सेम गोज फॉर ड्रॉप ऑफ टाइम। दो लोगों का राइड बिल्कुल एक ही टाइम पे एंड हो भी सकती है। देन देयर इज ओके पिकअप पॉइंट इधर सिटी और एयरपोर्ट। हाँ ठीक है, मतलब कस्टमर सिटी से एयरपोर्ट जा रहा था तो पिकअप पॉइंट सिटी में कहीं होगा, और एयरपोर्ट से सिटी जा रहा था तो पिकअप पॉइंट एयरपोर्ट रहा होगा। ड्राइवर आईडी, आउट ऑफ 6 एट्रीब्यूट्स वन ऑफ देम इज ड्राइवर आईडी। क्या जानना चाह रहा है वो? हाँ देखते हैं, हर ड्राइवर को भी उन्होंने कुछ आईडी दी हुई है। नाउ वन ड्राइवर कैन मेक मल्टीपल ट्रिप्स, तो ये भी यूनिक हो जरूरी नहीं है। इन 5 दिन में एक ड्राइवर ने मल्टीपल ट्रिप्स किए होंगे। तो जरूरी नहीं है ड्राइवर आईडी भी यूनिक हो। ओके, ड्राइवर आईडी की जरूरत क्या पड़ी उसको? हाँ सही कह रहे हो, यस अमित, काइंड ऑफ दैट। शायद देखना चाह रहा होगा कि ड्राइवर्स का बिहेवियरल इशू तो नहीं है, हो सकता है ना। So let's keep that in track also. And finally, last attribute, that is final status, कि finally उस request का हुआ क्या? Request complete हो गई, that is the best thing possible। कस्टमर ने कैब बुक किया था और कस्टमर वो राइड कंप्लीट हो जाती है, that is best। Another status possible is कि फाइनली उसका स्टेटस हुआ क्या? ड्राइवर ने कैंसिल कर दिया है, ये भी हो सकता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, थर्ड ऑप्शन, दैट इज कि कैब्स अवेलेबल नहीं, नॉन अवेलेबिलिटी का इशू आया, उस रीजन में कैब ही नहीं था। तो ना किसी ने कैंसिल किया, कस्टमर की बुकिंग भी डाली थी कस्टमर ने, लेकिन ड्राइवर ही नहीं था कोई आसपास। ठीक है जी, ये सब एट्रीब्यूट लिए उसने। और ये 3 बातें तो हो सकती हैं, सारी चीजें कवर कर ली उसने, या और भी कुछ हो सकता है? ये द क्वेश्चन which arises is, okay let's do one thing, let's break for some 5 minutes, ठीक है। meanwhile take a few deep breaths, stretch yourself and think about it। कैंसिल बाय कस्टमर, क्या उसने गलती से नहीं लिया है या जानबूझ के नहीं लिया है? Or and if there is some motive to uh, mm, not include them, those requests which are cancelled by customer, what could be that? Think about it and try to come up like don't just put in the sentence, try to articulate things, try to come up with try to come up with an well articulated one liners will be the best, one word would be even better। ठीक है, it's I leave a note here, it's 3 what, it's 3 9:34 by my clock। So we resume at 9:40, okay, let's connect after 5 minutes। Let's continue where we left। Yeah, I recall, I left you with a question,
Why your analyst is not including those requests which were cancelled by customers? Many of you have, you are getting the hang of it. Customer cancels, it is not our fault. Okay, that is one. For second, if customer cancels, you cannot even control it. Two things here. Most of you are getting it already. Articulate करना, that is another thing altogether. सही बात है. कस्टमर कैंसिल कर रहा है. नाउ कस्टमर में कैंसिल for n number of reasons. How would you control customer behavior? तो इसलिए वो क्या कह रहा है आपका एनालिस्ट, उसने उन राइट्स को भी नहीं लिया है. The analyst is doing a very intelligent job actually. जिस चीज का वो कुछ कर नहीं सकता, वो उसको इंक्लूड भी नहीं कर रहा है. तो लेट्स वरी अबाउट अदर रीजंस विच वी कैन कंट्रोल, विच वी कैन लुक इनटू. कस्टमर बिहेवियर उसका तो कुछ कर नहीं सकते. कस्टमर में कैंसिल अ रिक्वेस्ट फॉर अ वेरी नॉनसेंस रीजन. Yes or no? I don't know if this case study is from very early days. Uber उस समय ज़्यादा टाइम हुआ नहीं था इंडिया में बिजनेस लाइव हुई. This data I think it belongs to 2011 or 12. और उस समय उबर कुछ भी चार्ज नहीं करता था कैंसिलेशन के लिए. हाँ, वैगन आर आ गई. वैगन आर में भी नहीं जाऊंगा. इंडिका आनी चाहिए थी. तो ओके, लेट्स सी. हाँ जी, देख लिया आप लोगों ने, प्रॉब्लम समझ गए, डेटा आ गया आपके पास. क्या कर लें, क्या करोगे, एनालिसिस कैसा क्या करना चाहिए? लेट्स सी कैसा करना चाहिए. क्या कहता है उनका एनालिस्ट कि सबसे पहले तो यही देख लें कि हमारे पास डेली रिक्वेस्ट जो आते हैं उनमें डे वाइज कोई पैटर्न तो नहीं है. तो इट इज, हाँ, 5 दिन का रिकॉर्ड है आपके पास, 5 दिन का डेटा देख रहा है वो. नंबर ऑफ रिक्वेस्ट कितनी कितनी आई हैं. तो कितने कितने आए हैं 5 दिन. कुछ पैटर्न, ट्रेंड, रिवर्स ट्रेंड. बार हाइट इज शोइंग नंबर ऑफ रिक्वेस्ट कि किस दिन में कितने नंबर ऑफ रिक्वेस्ट आए हैं. हाँ, तो ऑलमोस्ट सेम सा ही है. कोई खास ऐसा पैटर्न तो दिख नहीं रहा. डेली लगभग सेम सी कहानी है. ओके, देयर आर 5 वर्किंग डेज. 5 दिन हमने देखा, तो नंबर ऑफ रिक्वेस्ट में कोई खास पैटर्न है नहीं. अब वो क्या कहता है कि ये देख लेते हैं चलो कि ये रिक्वेस्ट आती कहाँ कहाँ से है. चेक दिस आउट. एनीथिंग? हाँ, नॉट एग्जैक्टली बट ऑलमोस्ट 50-50 जैसा ही रेशियो लग रहा है. थोड़ा बहुत प्लस माइनस. तो कुछ खास ऐसा देखने को नहीं मिला अभी भी. ट्रेंड जैसा तो कुछ नहीं है. अभी क्या कह रहा है एनालिस्ट, बोल रहा है ये भी देख लेते हैं इन रिक्वेस्ट का होता क्या क्या है.
डेली बेसिस पे। एनीथिंग वर्थ नोटिसिंग? दिस इज फाइनल स्टेटस ऑफ द रिक्वेस्ट जो उसने लिया था कि इन रिक्वेस्ट का हुआ क्या। Would you see something? Okay, I see several responses. Okay, क्या चल रहा है? What about? Yes, exactly. Here, here there are two informations. There are two important informations here. Number one, yes, यही कह रहे थे आप सब लोग। अगर मैं मोटा मोटा देखूं, cancellation plus non-availability, it is constituting more than 50% on a daily basis. ऐसा ही कुछ है, more than 50%, and it is happening every day. Every day. Just imagine the business loss. ये सीईओ साहब ने देखा होगा, ये एक मिनी हार्ट अटैक आया होगा ना देख के। डेली हमारा 50% बिजनेस फुलफिल ही नहीं हो पाता। कस्टमर बुक कर रहा है, हम ग्रैब नहीं कर पा रहे हैं। और कोई चीज़ पता चल रही है यहाँ पे, और भी कुछ बात पता चल रही है आप में यहाँ पे? अगर चल रही है तो हमारे बिजनेस लॉस दो कारण से हो रहे हैं। वन इज कैंसिलेशन, अदर इज अवेलेबिलिटी। व्हाट सीम्स टू बी द पेन एरिया? एडिशनल कैब्स चाहिए, मे बी लोकेशन वाइज, जहाँ से लोकेशन, तो लोकेशन तो एयरपोर्ट ही है आकाश, लोकेशन कहाँ ढूंढनी है? हाँ, सिटी में हो सकता है क्वेश्चन लोकेशन का, कि सिटी में कहाँ पे अवेलेबल है। लेकिन इससे पहले कि हम एडिशनल कैब्स खड़ी कर लें अपनी फ्लीट में, रिमेंबर वो आइंस्टाइन सर आए थे ना थोड़ी देर पहले, वो फिर कह रहे हैं कि सुन लो मेरी बात, मान लो थोड़ी सी। हाँ जी, क्या कह रहे थे वो, कि जो दिख रहा है उसे ले मत लेना इतनी जल्दी, थोड़ा सा और सोच लो, शायद कुछ और भी हो।
अब याद रखना इस बात को, थोड़ी देर पहले तुम कह रहे थे नई कैब ले लेते हैं। हाँ, दिख भी रहा था ऐसे, ऐसा ही लग रहा है कि मेजर इशू है कैब अवेलेबिलिटी का। कैंसिलेशन का है, लेकिन वो तो जेन्युइन भी हो सकता है। 10-15% अगर कैंसिल हो रही है तो दैट कैन बी एट्रीब्यूटेड टू अ जेन्युइन रीजन ऑफ ड्राइवर। मेजर रेटिंग एरिया इज नो कैब अवेलेबिलिटी। हाँ, वो देखते हैं। हमारा एनालिस्ट वही कर रहा है जो आइंस्टाइन सर कह रहे थे, थोड़ा सा और डिटेल में जा रहा है। नाउ दिस विजुअलाइजेशन इज नंबर ऑफ रिक्वेस्ट पर आवर ऑफ द डे। दिन के 24 घंटे में कितने कितने आए। लाइक पांचों दिन का उसने देखा कि पांचों दिन 0th आवर, दैट इज मिड नाइट टू 1 AM, उसमें कितने रिक्वेस्ट आते हैं, कितने आते हैं। 1 to 2 AM, 2 to 3 AM, and morning, early morning, and so on. For 24 hours, there are 20 bars. And by the way, these all the charts which you are seeing, these are all uh, created by R. सीखेंगे आप लोग। एनीथिंग पर्टिकुलर, कोई कुछ देखने को मिल रहा है अभी यहाँ पे। हाँ जी, बिल्कुल। जो सर चार्जेस लगते हैं वो ऐसे ही लगते हैं। रियल टाइम एनालिसिस होता रहता है। अरे तुम्हें अभी पता ही क्या है बाल को, ऊबर क्या चीज़ है। खैर, यहाँ पर कुछ ऑब्जर्वेशन, यस, यहाँ पर कुछ ऑब्जर्वेशन तो है। यू सी देयर इज अ क्लीन स्लॉट फ्रॉम मॉर्निंग 5 AM से लेकर के 10 AM तक। हाँ, ये 10 AM से शुरू हो रहा है तो यहाँ 10 AM पे खत्म हुआ ये। तो 5 घंटे का एक क्लीन स्लॉट है, जहाँ पर हम देख रहे हैं दैट दीज आर रश आवर्स। बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आई हैं इसमें। ऐसा ही एक और रश आवर इधर भी है, दिस वन, एंड दिस इज 15, 14, 15, 16, 17। तो 17, 18, 19, 20, 20, 21, 29। Okay, this is also, this is morning 5 to 10 AM. This is evening again 5 to 10 PM. बड़ी अच्छी बात है। दो पीक स्लॉट निकल के आ रहे हैं जिनसे पता चल रहा है कि एयरपोर्ट के लिए या एयरपोर्ट से रिक्वेस्ट बहुत ज़्यादा आती हैं आवर्स में। यानी कुछ तो एयरपोर्ट पे मैसिव होता है ड्यूरिंग दीज टू टाइम स्लॉट्स, तभी तो इतने सारे लोग आ रहे हैं या जा रहे हैं। इतने सारे लोगों को कैब चाहिए एक समय पे, चाहे जा रहे हैं या आ रहे हैं, रिक्वेस्ट तो डाल रहे हैं। लेट्स सी पिकअप पॉइंट के बेसिस पे क्या क्या होता है इसमें। एनीथिंग नोटिसेबल?
हाँ जी, क्या समझ आ रहा है इससे? मॉर्निंग में सिटी हैज मोर पिकअप पॉइंट्स। मतलब ज़्यादातर लोग सिटी से एयरपोर्ट जाने की कोशिश कर रहे हैं मॉर्निंग में। पिकअप पॉइंट सिटी है तो डेस्टिनेशन एयरपोर्ट ही होगा। और कितने ज़्यादा हैं? कितने ज़्यादा हैं एफ आई सी? दीज आर कॉन्स्टिट्यूटिंग ऑलमोस्ट 80-20 का रेशो है। ऐसा ही तो है। लगभग 80% लोग इस पीक स्लॉट में सिटी से एयरपोर्ट जाते हैं। एयरपोर्ट टू सिटी बहुत ही कम है, 20% हार्ड। इवनिंग में क्या कहानी है जी? इट इज़ ऑलमोस्ट रिवर्स। इवनिंग में सम 75% लोग एयरपोर्ट से सिटी जा रहे हैं और थोड़े बहुत ऐसे हैं जो सिटी से एयरपोर्ट जाने की कोशिश कर रहे हैं। इस बात का मतलब क्या हुआ? क्या समझो एयरपोर्ट पे क्या हो रहा है इस समय? शायद इसका मतलब ये है शायद इसका मतलब ये है कि मॉर्निंग वाला जो ये टाइम है, इस समय बहुत सारे फ्लाइट डिपार्चर होते हैं। यस और नो? अरे तभी तो सारी दुनिया भागी जा रही है सिटी से एयरपोर्ट। अराइवल बहुत कम है। इवनिंग में इट सीम्स लाइक, इवनिंग वाले स्लॉट में इसका मतलब इस एयरपोर्ट पे अराइवल्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तभी तो इतनी सारी रिक्वेस्ट एयरपोर्ट से आ रही हैं कि एयरपोर्ट से हमें सिटी ले चलो। डिपार्चर थोड़े से हैं। सही बात। ऐसा ही लग रहा है। मतलब वी आर नॉट सेइंग दैट दिस इज द रीजन ऑफ समथिंग, वी आर जस्ट लुकिंग फॉर सम प्रोबेबल एक्सप्लेनेशन। व्हाट आर द प्रोबेबिलिटीज? वेरी वेल। एक चीज और देखें, देखते हैं रिक्वेस्ट का होता क्या क्या। हाँ जी, स्टेटस वाइज देखें तो क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? स्टेटस वाइज कुछ समझ आ रहा है क्या हो रहा है? The peak slots, two clean peak slots. इवनिंग में अवेलेबिलिटी का इशू कितना है? 50% तो निश्चित है, ज़्यादा ही होगा थोड़ा बहुत। कैंसिलेशन भी है थोड़ा बहुत। आते हैं मॉर्निंग की तरफ। मॉर्निंग में देख रहे हो जो कंप्लीट हो गई वो तो चलो कंप्लीट हो गई। दीज आर सम 35-40%। मॉर्निंग में देख रहे हो इशू अवेलेबिलिटी का नहीं है। इशू क्या है? इट इज सम अगेन 30-35% एटलीस्ट, इफ नॉट मोर। हाँ जी। अभी थोड़ी देर पहले आप क्या कर रहे थे कि चलो कैब बढ़ाते हैं, कैब ले आते खरीद के अभी। आइंस्टाइन सर ने डांटा थोड़ा बहुत तुम्हें, तो तुम्हें समझ आया। और अब क्या देख पा रहे हो आप जो अभी तक दिखा नहीं था? इशू अवेलेबिलिटी का नहीं है। इशू इज विद द टाइम ऑफ द डे। डिपेंडिंग अपॉन द टाइम द इशू इज चेंजिंग। इवनिंग में
नॉन अवेलेबिलिटी इशू है, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन मॉर्निंग में नॉन अवेलेबिलिटी की इतनी प्रॉब्लम नहीं है। कैब्स अवेलेबल हो जा रही हैं यूजुअली, एटलीस्ट 80% ऑफ टाइम्स। इशू इज कि ड्राइवर कैंसिल कर देते हैं। अब अब हम बहुत सारी कहानी कह चुके हैं, जरा बताओगे हम कौन से स्टेज पे हैं अभी? डिस्क्रिप्टिव, डायग्नोस्टिक, प्रेडिक्टिव, प्रेस्क्रिप्टिव, कहाँ चल रहे हैं, क्या कर रहे हैं बेसिकली? somebody predictive, diagnostic, predictive and diagnostic, predictive। ओके। हम डिस्क्रिप्टिव पे ही हैं अभी, अभी कुछ नहीं किया हमने। अभी तक हमने, अरे हमने किया ही क्या है, हमने सिर्फ ये देखा है कि ये डेटा कैसे कैसे लगा रहे हैं। नहीं आ रहा। अरे अभी कुछ किया थोड़ी है, उसी डेटा को उल्टा पुल्टा करके तो देख रहा हूँ। हाँ, डायग्नोस्टिक की कोशिश अब करेंगे। अभी तक मैंने सिर्फ ये देखा है कि ये डेटा क्या क्या दिखा रहा है। डेली बेसिस पे देखा, फिर पिकअप पॉइंट के हिसाब से देखा, फिर स्टेटस के हिसाब से देखा, फिर भी मजा नहीं आया, तो हमने फिर आवरली बेसिस पे पहुंचे कि आवरली बेसिस पे देखते हैं कि इन इन पर्टिकुलर आवर ऑफ द डे क्या हो रहा है। अगेन फिर पिकअप पॉइंट देखे तो पता चला कि पिकअप पॉइंट का फर्क तो है। दिन में घंटे के हिसाब से रिक्वेस्ट में नंबर ऑफ रिक्वेस्ट चेंज हो जा रही है। उनके पिकअप पॉइंट्स में भी कुछ पैटर्न है, उनके फाइनल स्टेटस में भी कुछ पैटर्न है। अब इतनी कहानी हो चुकी। अब बात करता हूँ डायग्नोस्टिक की। आप दोनों चीजें देख रहे हो। दो पीक स्लॉट्स हैं, मॉर्निंग और इवनिंग, 5-5 घंटे के। पिकअप पॉइंट का पैटर्न कुछ ऐसा ऐसा दिख रहा है। मॉर्निंग में सिटी पिकअप पॉइंट रहता है, लोग सिटी से एयरपोर्ट भागे जा रहे हैं। इवनिंग में लोग एयरपोर्ट से सिटी भागे जा रहे हैं। मतलब भागे कहाँ जा रहे हैं, मतलब मांग रहे हैं, कैब तो मांग ही रहे हैं। फाइनल स्टेटस देखता हूँ तो मॉर्निंग में कैंसिलेशन बहुत होता है, फुलफिलमेंट तो उतना ही हो रहा है, ले दे के 40% मुश्किल से। 40 भी पता नहीं हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेकिन मॉर्निंग में मेजरली कैंसिलेशन हो जाता है। इवनिंग में कैंसिलेशन तो नहीं होता, लेकिन कैब ही अवेलेबल नहीं हो पा रहा इवनिंग वालों। नाउ लेट्स पुट दिस स्टोरी टुगेदर एंड ट्राई टू डायग्नोज क्या हो रहा है, क्यों हो रहा होगा। गॉट सम आइडिया? सोच के बताना, देख लो स्लाइड आराम से। और भी कुछ देखना हो तो बता देना, स्लाइड आगे करना हो पीछे करना हो, देख लो आराम से। थिंक अबाउट इट, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। नाउ दिस इज अ चार्टर। फिर डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस में आपने ऑब्जर्वेशन क्या देखा? दिस इज समथिंग लाइक हैड इट बीन क्लासरूम, तो मैं तुम्हें में से किसी को बुला के व्हाइट बोर्ड पर खड़ा कर देता हूँ कि अभी तक जो ग्राफ देख रहे हो आप प्रोजेक्टर पे, देख के वहाँ पे लिखना शुरू करो एक एक करके कि क्या क्या ऑब्जर्वेशन आई। तो डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स गिव्स मी सम ऑब्जर्वेशंस, एंड उस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे आई डिड्यूस अ हाइपोथेसिस कि शायद ऐसा हो रहा होगा। आई एम कॉलिंग इट हाइपोथेसिस। Now pay attention to this very carefully. I am calling it hypothesis, not reason. It is not necessarily reason for this. ठीक है, जरूरी नहीं है कि इसके कारण से ये हो रहा है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू correlate things. I am not calling that this is cause of this. There is a famous saying in data science that correlation does not mean causation. अगर दो चीजों में correlation है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये इसकी वजह से ये हो रहा है।
ठीक है जी, याद रहेगा। तो नेवर यूज दीज काइंड ऑफ वर्ड्स दैट दिस कॉज दिस या दिस इज द रीजन फॉर दिस। So these are terminology jargons, but keep this thinking. देखते हैं एक एक करके। ऑब्जर्वेशन हमने क्या देखे थे? देयर आर टू हाई डिमांड टाइम स्लॉट्स। एक मॉर्निंग में था AM टू AM, एक इवनिंग में था 5 PM टू 10 PM, जिनमें रिक्वेस्ट तो बहुत सारी आई थी। उनका हुआ पता नहीं क्या, लेकिन रिक्वेस्ट तो बहुत सारी आती। इट सीम्स इट सीम्स लाइकली, यस और नो? उस समय एयरपोर्ट पे देयर इज मैसिव एक्टिविटी, फ्लाइट्स या तो आ रही हैं या जा रही हैं, जो भी हो रहा है। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन वी सॉ, मॉर्निंग में कम 80% रिक्वायर्स सिटी टू एयरपोर्ट होती है। तो शायद ऐसा हो रहा हो कि मॉर्निंग में फ्लाइट डिपार्चर बहुत ज़्यादा है, इवनिंग में रिवर्स केस था, 80% रिक्वेस्ट एयरपोर्ट टू सिटी आती। तो शायद अराइवल ज़्यादा है, अराइवल बहुत ज़्यादा है डिपार्चर से। ट्राइंग टू पुट दिस स्टोरी टुगेदर। मॉर्निंग में हमने देखा था प्रॉब्लम क्या था, मोस्टली ड्राइवर्स कैंसिल कर रहे थे। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा, शायद शायद वो सिटी से एयरपोर्ट तो पहुंच गया ड्राइवर, सिटी से एयरपोर्ट जाने के लिए तो बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी, एयरपोर्ट टू सिटी बहुत कम है इसमें मॉर्निंग में। उसे वापस आने के लिए पैसेंजर नहीं मिलता। माइट बी द केस। यार 5 7 10 दिन गया होगा, ड्राइवर को एहसास हो गया होगा कि यार ये तो बहुत ज़्यादा वेटिंग टाइम लग जाता है यहाँ पे। तो उसके बाद से 10 15 दिन, जितने भी दिन थे, नुकसान करवाया उसने। उसके बाद उसने क्या सोचा, जाते ही। एंड दैट्स व्हाई वी गेट व्हाट, ऑलमोस्ट 40% कैंसिलेशन देख रहे थे ना मॉर्निंग में। 40% टाइम्स ड्राइवर कैंसिल कर देता है उसको। ऑन द टॉप ऑफ इट, चेक दिस वन ऑल्सो, यू नो दिस वन इज अ बमर। आपके ये क्रिटिकल टाइम स्लॉट्स हैं। क्रिटिकल इन द सेंस, एयरपोर्ट पे तो हो ही रही है मैसिव एक्टिविटी, एट द सेम टाइम विद इन सिटी देयर आर एम्पल रिक्वेस्ट। व्हाट आर दीज? यार लोगों के ऑफिस, स्कूल्स, कॉलेज किस समय होते हैं? ये मॉर्निंग 5 to 8, 5 to 10, इसी टाइम तो निकलते हैं। स्कूल्स हैं तो 7 बजे 8 बजे होंगे, कॉलेज है तो 9 बजे होगा, ऑफिस है तो 10 बजे होंगे, 9 9:30 8:30, दैट काइंड ऑफ थिंग। तो आपके ड्राइवर के दिमाग में ये बात आ सकती है ना कि यार यहाँ पे 1 घंटा एयरपोर्ट जाऊंगा, 1 घंटा वेट करूंगा, फिर 1 घंटे में वापस आऊंगा, गलती से कोई मिल गया पैसेंजर। यहाँ ऑफिस टाइमिंग वाले लोग इतने सारे घूम रहे हैं सिटी की सिटी में, तब तक यहाँ पे 4 राइड कंप्लीट कर दूंगा। क्या करना है एयरपोर्ट जाकर? यस और नो? योर ड्राइवर कैन थिंक लाइक दैट। अगेन आई एम नॉट सेइंग दिस इज द रीजन, आई एम नॉट, आई एम जस्ट अपोलोजेटिक। लेकिन हाँ, हमारी कहानी में जान सी तो लग रही है ना, जान तो है इस बात में, जो हमारी थ्योरी है। ओके। इवनिंग में क्या प्रॉब्लम था? नॉन अवेलेबिलिटी का। हाँ, होना भी चाहिए। देखो सही हो रहा है ना। इवनिंग में नॉन अवेलेबिलिटी हो जाती है। क्यों हो जाती है? फ्लाइट डिपार्चर बहुत कम है, तो सिटी से एयरपोर्ट के लिए लोग ही नहीं आ रहे, ये बहुत कम आ रहे हैं। जितने आ रहे हैं वो कैब्स एयरपोर्ट पे अवेलेबल दिख जाती हैं, लेकिन बाकी लोग जो एयरपोर्ट पे खड़े हैं उन्हें क्या दिखता है?
उन्हें क्या दिखता है? यही। प्रेडिक्शन के लिए है क्या नहीं करने को, बिकॉज व्हाट आई से, प्रेडिक्शन तब होता है व्हेन देयर इज सम वेरिएबल विच इज विच कैन वेरी विद टाइम, विच कैन वेरी इन फ्यूचर। तो उसके बेसिस पे मैं सोचूं कि इसके बेसिस से मेरा प्रेडिक्शन कुछ बदलेगा तो बदलेगा। यहाँ पर कोई ऐसा वेरिएबल है नहीं यार, नहीं है ना। यार एयरपोर्ट अपने टाइमिंग बदलेगा तो है नहीं उबर के कहने से। या ट्राई करना चाहिए उबर को कि चलो एयरपोर्ट वालों से बात कराते हैं। हाँ कुछ, there is not much scope to change anything unless and until Uber changes itself. Uber कुछ अपना तरीका सोचे, वो अलग बात है। कीपिंग ऑल द वेरिएबल्स इन, नथिंग इज गोइंग टू चेंज। तो प्रिडिक्शन के लिए इसमें ज़्यादा कुछ ऐसा है नहीं। प्रिस्क्रिप्टिव, यस देयर कैन बी प्रिस्क्रिप्शन। अभी तक हमने बहुत कुछ जोड़ घटा कर लिया, एक कहानी बैठा ली, और वी सी दैट देयर इज यू नो this story, this story has ground. This story has substance. It is not just a pure hypothesis. It seems like there is substance to this. So we can give it a try. We can give it a try. What do you think? What do you think now should be done? Let's come to prescription now. What do you have to say? What should be done? So ठीक है, it's time already. So let's wind it up for today. बहुत सारा theoretical part था, लेकिन I tried to keep it interactive and interesting. I hope the session was good. I hope you did not doze off. I can't comment that about नारी शक्ति। नारी शक्ति या तो शुरू में बोल रही थी या अभी बोल रही है, बीच में गायब थे। ठीक है चलो। Okay, okay. So glad to know that you enjoyed theory part also. Okay, very well, guys. Then let's. I'm signing off for today. We will connect tomorrow again, same time. Okay, and we will continue with further coding. आलोक सर, तरणदीप